خالہ جان، میں بتا رہی ہوں سلطان بہروز صرف میرا ہے، ورنہ میں خود کو مار ڈالوں گی۔ ہیرا شدید غصے کی کیفیت میں ہستانی ہوتی مبین بیگم کے روم میں بیٹھی چیخ رہی تھی، بالکل بیٹا، وہ صرف تمہارا ہے۔ مبین بیگم نے پرسرار مسکراہٹ اسے اپنے ساتھ لگایا، جلتے دل پر پڑی ٹھنڈک پر وہ بہت کچھ سوچنے لگی۔ خالہ، بس آپ اس زنیشہ کو حویلی سے نکالنا ہے۔ اپنے بال انگلی میں لپیٹتے انگلیوں میں چنگاریاں لیے، آنکھوں میں چنگاریاں لیے وہ نفرت سے بولی، ضرور اسے تو نکلنا ہی پڑے گا، آخر یہ اس کی جگہ تھوڑی ہے۔ مبین بیگم بھی اس کے ساتھ دیتی شطرانہ مسکرائی۔ او جانا، میری جان، نظریں مجھ سے ملانا۔ ساحر خاصی اونچی آواز میں گنگناتے اسکول کے باہر گاڑی سے ٹک لگائے کھڑا تھا۔ چھٹی ہو چکی تھی، اب اسے سلطان بہروز کی سالی صاحبہ کا انتظار تھا۔ انٹمیشن فیس اس کی وہ دے آیا تھا، پر اب ایک بار وہ اس سے معلومات لینا چاہتا تھا، ساری پیپرز کی۔ اس کی تصویر بھی اسکول ریکارڈ والی ہی دیکھی تھی، اس لیے آنکھیں چھوٹی کیے وہ لڑکیوں کے ہجوم سے اسے تلاش کر رہا تھا، ساتھ ساتھ گانا بھی گا رہا تھا۔ اسے زیادہ وقت نہیں لگا اسے ڈھونڈنے میں، سامنے ہی وہی لڑکی پر ذرا چینج سی بلیک چادر لیے تقریباً 16 سال کی وہ نازک لڑکی نظریں جھکائے کندھے پر بیگ ڈالے اپنی دوست کے ساتھ چلتی اس کے طرف ہی آ رہی تھی۔ لڑکی، بات سنو۔ سحر اسے اپنے پاس سے گزرتے دیکھ جلدی سے بولا۔ ماتھے پر وال ڈالے وہ اس کی طرف مڑی، جبکہ اس کی دوست گھبراتی ساحر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہے؟ اپنی بڑی بڑی شہد رنگ آنکھوں سے اس نے ساحر کو گھورا۔ مجھے سلطان نے بھیجا ہے۔ چھٹاک بھر لڑکی کے غصیلے تیور دیکھ کر اسے گڑگڑاتے کہا، میری اپیہ کے سائیں سلطان۔ خوشی سے اس کی آنکھیں چمکی۔ ہاں، وہی بہروز سلطان۔ اس لڑکی کو نارمل ہوتے وہ سر ہلا گیا۔ بنو چلو، اس کی دوست نے کہنی مارتے دھیمی سے کہا۔ تم جاؤ، میں اپیہ کا پوچھ لوں، پلیز پلیز۔ اس نے اپنا بیگ کندھے پر صحیح کرتے، چادر ذرا ٹھیک کرتے کہا، جس پر اس کی دوست ساحر کو گھورتی چلی گئی۔ انکل جلدی بتائیں مجھے میری اپیہ کا، میں لیٹ ہو رہی ہوں، گھر جانا ہے۔ بنو نے اسے بازاریت سے ادھر ادھر دیکھتے کہا، پر اس کی بات پر ساحر کا دل کیا اس کا سر پھوڑ دے۔ اس نے ایک نظر خود پر ڈالی، کیمل شرٹ، بلو جینز، وائٹ جاگرز، اچھی بھلی اس کی ایک لک تھی جو وہ کچھ بھی لگ سکتا تھا، پر انکل نہیں۔ ساحر نے دانت پیستے اسے دیکھا جو بڑے اتفاق سے اپنی اپیہ کا پوچھ رہی تھی۔ لڑکی، تیری اپیہ کا مجھے نہیں پتا، مجھے سلطان نے بھیجا ہے، تم جلدی سے بتاؤ تمہارے پیپرز کب ہیں، پلیز زیادہ دماغ کو پکاؤ مت میرے۔ غصے سے سرخ ہوتے وہ جل کر بولا، انکل غصہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اگر سلطان جیجو نے بھیجا ہے تو میری اپیہ کا بھی پتا ہے ہی ہوگا، میرے پیپر نیکسٹ منتھ ہے۔ منہ بسوتی اس نے بولا، اچھا ٹھیک ہے کاکی۔ دانت پیستے بغیر وہ بات کا جواب دیے دھواں چہرہ لیے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور جہاز کی سپیڈ سے وہاں سے بھاگی۔ وہ وہی ہونک بنی کھڑی، اس کی دھول اڑاتی گاڑی دیکھتی، عجیب انکل ہے، مجھے کیا، میں اپیہ سے جلد ملوں گی۔ کندھے اچکاتی وہ دوبارہ اپنی راہ پر چل دی۔ میں اسے انکل دکھ رہا تھا، یعنی میں ساحر خان 1.5 فٹ لڑکی کو انکل لگا۔ ساحر کا تو غم ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، سلطان کے پاس بیٹھا پچھلے 1 گھنٹے سے تقریباً 100 بار یہ بات دہرا چکا تھا۔ بس کر ساحر، بس کر، وہ بچی ہے، تجھے انکل ہی کہنا ہے اس نے۔ سلطان نے سر جھٹکتے اسے گھورا۔ کیا کہا؟ بچی ہے وہ؟ بنو شنو 10th کی اسٹوڈنٹ ہے، وہ بھی اگلے ماہ پیپرز ہو رہے ہیں اس کے، یعنی فرسٹ ایئر کی لڑکی ہے، ابھی بچی کہہ رہے ہو، اور 5 ماہ بعد 17 سال کی ہو جائے گی۔ سحر نے جلتے ہوئے کہا۔ سحر، یہ غم کبھی ختم ہوگا؟ تنگ آتے اس نے پوچھا۔ یار سلطان، کیا میں واقعی انکل لگتا ہوں؟ ساحر نے خود کو دیکھتے سوال پوچھا۔ نہیں میرے بھائی، تو ہیرو ہے، ہیرو، ٹینشن نہ لے۔ گہری سبز آنکھوں میں سنجیدگی لیے اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ بس تیرے بھائی کے پیچھے لڑکیاں پاگل ہیں۔ کالر سیدھی کرتے اس نے فخر سے کہا، جس کی تاکید میں سلطان نے سر ہلایا۔ تم آج واپس کب جا رہے ہو؟ سلطان نے اسے خاموش بیٹھا دیکھ پوچھا۔ دل نہیں کر رہا جانے کو حویلی، موم کا سامنا نہیں کرنا چاہتا، ہیرا بھی آ چکی ہے، اب بس جانے کا من نہیں۔ گہرا کش سگریٹ کو
का भरते उसने धुआं फिजा में छोड़ा। सफेद कलफ की लगे सूट में मर्दाना शाल लिए वो नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रहा था। हीरा आई हुई है और भाभी भी अकेली है उधर, तुम्हें जाना चाहिए। अपने बाल सही करते वो उसके करीब बैठ गया। दोनों इस वक्त फार्म हाउस में बैठे थे। तुम्हारी भाभी काफी तेज है, दरवाजा खोलेगी तो ही कोई उससे मिलेगा। सुल्तान ने मुस्कुराते सिरकट को पांव तले मसला। क्या इरादा है फिर? साहिल ने अबरूएं उचकाते पूछा। जुनिशा को खुश रखना चाहता हूँ, हमेशा क्या करूँ? वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ते कहा। भाभी को उसके अब्बू के घर ले कर जाओ, वो खुश हो जाएंगी। तुम उसकी खुशी को समझो, एक बार खुद को भूल कर उसे देखो, वो क्या चाहती है। साहिल ने चेयर की पुश्त टेक लगाते उसकी हालत को सोचते देखा। कोशिश करूंगा। ओके, मैं चलता हूँ। अपनी जगह से उठते उसने अपनी गाड़ी का रुख किया, जबकि उसकी चौड़ी पुश्त देखती साहिर ने उसके लिए आसानी की दुआ की। किचन से आती आवाज़ों पर मुबीन बेगम माथे पर बल डाले अंदर गई। जुनीशा भूख से नडाल चकराते सर बुखार से तपती पानी का गिलास पकड़े बाहर को मुड़ी। किचन की दहलीज पर मुबीना बेगम को खड़ा देख खामोशी से गुजरना चाहा, पर मुबीन बेगम ने उसकी कहनी सख्ती से पकड़ते रोका। उसकी वहशी गिरफ्त पर वो तड़प उठी, पर मुबीन बेगम ने उसे पीछे करते खुद सब्जियां निकालती बाहर रखी। इन सब को काटो और रात तक सब तैयार हो। चिकन फ्रिज में पड़ा है, चावल सामने रखे हैं, 4-5 डिशेस तैयार करनी है, अगर ना की तो। मुबीन बेगम ने उसे जहरीली नजरों से देखते कहा और बाहर चली गई। अपना बाजू से हिलाती वो तमाम चीजें टेबल पर रखती बैठ गई। सुर्ख नीम आंखों से छुरी पकड़े तमाम सब्जी काटने लगी बेख्तियारी में और चकराते सर के साथ उसने तेज छुरी से प्याज काटा और तेज धार छुरी उसके हाथ जख्मी कर गई। अपने हाथ से खून निकलता देख वो रोने लगी। जुनीशा सुल्तान की तेज धार पर उसने टप टप फर्श पर गिरते खून से भीगी नजरें उठाते सुल्तान को देखा, जो सुर्ख चेहरा लिए उसी की तरफ बढ़ा। सुल्तान ने आगे बढ़ते उसका हाथ पकड़ा। हथेली पर अच्छा खासा कट लग चुका था। किसने कहा था किचन में आओ? हजारों मुलाजिम क्या मैंने भौंकने के लिए रखे हैं? उस भीड़े शेर जैसी धार पर हीरा और मुबीन बेगम भी वहां आ चुकी थी। सुल्तान जुनीशा को गुस्से से घूरते उसका हाथ पकड़े एक गहरी सख्त नजर हीरा पर डालते बाहर ले आया। सुल्तान दर्द अगले में अटकी आंसू से वो रोती चली गई। कुछ नहीं होता, अभी ठीक हो जाएगा, रोते नहीं। वो अपने साथ लगाते उसे सोफे पर बिठाया। माथे पर भूसा देते उसने अपने हाथ में पकड़ी उसकी नाजुक सफेद हाथ से उठती हरारत महसूस करते लब सख्ती से भेजे। फर्स्ट एंड बॉक्स लाओ, सुल्तान ने खादमा को कहा, जिस पर किचन में रखा फर्स्ट एंड बॉक्स लाकर सुल्तान को पकड़ाया। खादमा उसे बॉक्स पकड़ाती चली गई। छोटे मालिक के गुस्से से कौन बच्चा था आज तक, जबकि नफरत से हीरा ने सुल्तान का इतना पोजेसिव अंदाज देखा, जो मोहब्बत से उसके बाल सही करते उसके हाथ पकड़े पट्टी कर रहा था। किसने कहा था किचन में काम करने को? उसकी सुर्ख गुलाबी गाल से लाते उसने जैसे जिस अंदाज में पूछा, उसकी काई जमी आंखों की सुर्खी देख जुनीशा कांप गई। डरते डरते उसने किचन के दरवाजे पर खड़ी मुबीना बेगम को देखा, जिसने आंखों से वाजे किया था कि ना बताए। सुल्तान ने उसकी नजरों के ताक़ब में अपनी माँ को देखा। क्या मॉम ने कहा था? अबरूएं उचकाए उसने जुनीशा के झुके सर को थोड़ी पर उंगली रखते ऊपर किया। जुनीशा ने फौरन नास में सर हिलाया। नहीं, मेरा दिल कर रहा था कुकिंग करने को। जुनीशा ने सुल्तान के हाथ पर नाजुक हाथ रखते बामुश्किल मुस्कुराते कहा। सुल्तान बगैर रोमांस जाहिर किए उसका बाजू पकड़े सीढ़ियां चढ़ता ऊपर कमरे में ले गया। तबीयत देखी है अपनी, बुखार से सुर्ख पड़ी हो और दिल कुकिंग का कर रहा है, खाना खाने की जहमत भी नहीं की होगी। उसने सख्त तेवर लिए पूछा, पर नजरें साइड टेबल पर रखी ट्रे पर पड़ी जहाँ खाने को छुआ तक नहीं था, और मेडिसिन भी वैसी ही पड़ी थी। उसे बेड पर बिठाते अपने माथे को 2 उंगलियों से मसला। आइंदा अगर मैंने तुम्हें किचन में काम करते देखा तो अंजाम की जिम्मेदार खुद होगी। उसे फोन करते उसने काल मिलाते किसी को खाना लाने का कहा। खादमा गरम खाना वहां रखती दूसरी ट्रे उठाकर ले गई। जुनीशा उंगलियां चटकती उसकी मौजूदगी में अपनी बेहंगम धड़कनों को संभालती बेड पर पांव लटकाए बैठी थी। बरोज कमीज के कफ कहनियों तक मोड़े, थकन से और कुछ गुस्से से सुर्ख
सब्ज जाजिब आंखों से उसका जायजा लिया। उसकी नजरों की तपिश पर उसके खदोखाल में सुर्खी दौड़ गई। बेरोज महब सा मुस्कुराते वो बेड पर बैठा, अपने पांव शूज से निकालते वो बेड पर रखी ट्रे को पकड़े, चावलों का चम्मच भरकर जुनिशा की तरफ बढ़ा। झुकती वो भी पांव टेबल पर रखती अब उसके पास बैठ गई। चावलों भरा चम्मच उसके हाथ से खाती, अपने नाखून से बेड पर खुरचती वो नजरें चुरा रही थी। मुझे भी भूख लगी है। सुल्तान उसे वक्फे 3-4 चम्मच खिलाने के बाद लब दबाए बोला। इस वाकये के बाद सुल्तान और उसके दरमियान खामोशी टूटी थी। आप भी खा लें। कितनी शर्मिंदगी हो रही थी उसे कि उसने एक बार भी पूछा तक नहीं। तुम खिला दो तो। उसकी गहरी बोलती नजरें खुद पर की देख उसने सुल्तान के हाथ में पकड़ी एक ही चम्मच को देखा। मेरे हाथ पर चोट लगी है, बहाना बनाते उसने बेचारगी से कहा। वो बाएं हाथ पर कट लगा है, तुम दाएं हाथ से खिलाओ। ट्रे उसके सामने खिसकाते उसने बाजूर उसकी हरकत देखी, जो लब सख्ती से काटती कंफ्यूज थी। जो नजर उसके हाथ पर पकड़ी चम्मच को देखा। मैं इस्तेमाल शुदा चीजें इस्तेमाल नहीं करता। उसके लफ्जों में कोई मजाक ना था, बल्कि वो चम्मच को ट्रे में रखते कंधे उचका गया। इस्तेमाल शुदा चीजें इस्तेमाल नहीं करनी, पर जिसने इस्तेमाल की है उसके हाथ से खा लेना है। जाने क्यों वो जुनिशा को गुस्सा आया, इसलिए ट्रे से चावल भरी बिरयानी की प्लेट उठाती, दाएं हाथ से चावल सुल्तान की तरफ बढ़ाए। खुशी से शाद और मसरूर होते उसके हाथ से चावल खाए। उसके होंठ उसकी उंगलियों से टच हुए। शर्म और घबराहट से जुनिशा ने जल्दी से हाथ पीछे खींचा। सुल्तान ने लब दांतों तले दबाए चम्मच भरकर उसकी तरफ किया, जिसे वो बामुश्किल खाने लगी। फिर हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ, सुल्तान ने उसी चम्मच से चावल का एक चम्मच खाया। जुनिशा के हलते होंठ रुके, दिल तेजी से धड़का। मैंने सोचा जिस लड़की पर बेरोज सुल्तान आशिक है, उसका झूठा खाने में क्या है। गहरा मुस्कुराते उसने कहा, बस और नहीं खाना। 2 चम्मच और खाती उस सर ना में हिला गई। बुखार से दुखता सर वो बामुश्किल ही बैठी थी। सुल्तान ने बगैर कुछ कहे उठते ट्रे टेबल पर रखी और वापस बेड पर बैठी जुनिशा की तरफ बढ़ा। झुकते उसने जुनिशा का तकिया ठीक किया। इस दौरान उसका चेहरा जुनिशा के बेहद करीब था। उसके पास से आती क्लोव्स की खुशबू पर जुनिशा ने हलक तर किया। उस पर कंफर्ट डालते, लाइट ऑफ करते पूरे कमरे में अंधेरा कर दिया। कदमों की चाप और दरवाजा बंद होने की आवाज पर उसका दिल बुझ गया। कमरे में तमाम चीजें बेरौनक हो गई। दिल उचाट दिल से करवट बदलती उसने नीम होती आंखें साफ की। किसी ने कमर के गिर्द बाजू हायल करते अपनी तरफ खींचा। अंधेरे में उसकी एक चीख गूंजी। फटी निगाहों से उसने सुल्तान के मखसूस परफ्यूम की खुशबू महसूस करते उसके सीने से खुद को लगे देख वो आंखें झुका गई। सुल्तान उसे अपने हारिस में लेता नरमी से उसके बाल सहलाने लगा। कुछ ही देर में वो उसकी आगोश में पुरसुकून लेटी सो गई। उसके हारिस में कैद जुनिशा को सुल्तान ने देखा। उसके आने के बाद सब कुछ बदल चुका था। सुल्तान बदल चुका था, पर वो हमेशा जुनिशा के लिए तकलीफ का बासित बना था। गहरी सांस खारिज करते उसके माथे पर नरमी से होंठ रखते वो उठा। वो अच्छे से जानता था जुनिशा उससे नफरत करती है। वो बेबस था इस मामले में। अमीर ज़ादों को जब इश्क हो जाए ना तो अच्छा ख्वार करता है। बेतासर चेहरा लिए मोबाइल की तरफ मुतवज्जो होते ही ईमेल चेक करने लगा। कुछ जरूरी काम के तहत उठता उजलत में बाहर निकला। बहरोज की एक फैक्ट्री में आग लग चुकी थी। सुर्ख नजरों के साथ हालात को कंट्रोल करते हुए गुस्से से तने नखूश लिए तमाम मामलात ले चुका था। फैक्ट्री का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, काफी बचत हो गई थी, पर ये काम अधूरा काम करते किसी वर्कर ने ही किया था, जिसे वो पुलिस के हवाले कर चुका था। आज पहली बार कोई शख्स सुल्तान के हाथों जिंदा बचा था, उसका नुकसान करने के बावजूद। उस वक्त रात हो चुकी थी। शायद थकन के बाद से उसकी आंखें हल्की सुर्ख थीं। साहिर ने उसे कहा था कि जुनिशा को खुश रखना है तो उसकी खुशी को देखना होगा। और उसकी खुशी क्या है ये सोचती सुल्तान मुठ्ठियां भेज गया। कुछ सोचते वो गांव को जाती सड़क पर गाड़ी डाल चुका था। हाथ सीने पर बांधे सुल्तान ने सुर्ख लहू टपकती सब्ज आंखों से सलम को देखा, जो झुके कंधों के साथ खड़ा था। अब क्या
लेने आए हैं आप सब, ये कुछ तो सब कुछ तो आपने ले लिया है, अब यहाँ और कुछ नहीं है जिसे आप ले जा सके। असलम ने अजियत से कहते नीम निगाहों से अपने मालिक को देखा जिसने उसकी बेटी को छीन लिया था। मेरे पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है, मैं खाली हाथ हूँ। मेरी दस्तरस में मेरी जिंदगी है पर वो मेरी नहीं है। असलम साहब, मैं ज़ुनैशा सुल्तान को कल आपके पास छोड़ जाऊंगा। मजीद उसे अपने पास रखकर उसे तकलीफ नहीं दे सकता, पर वो हमेशा मेरी ही रहेगी। जिंदगी भर के लिए मेरा नाम मरते दम तक उसके साथ रहेगा। सुल्तान ने ये लफ्ज़ कैसे कहे थे वो ही जानता था। जबकि असलम ने आंखें फैलाए उसे देखा कि वो वाकई सच कह रहे हैं, पर वो कहते एक पल रुके बगैर लंबे डंग भरता वहां से चला गया। रात के वक्त हवेली दाखिल हुआ था। बुझा सा चेहरा बिखरा पड़ा हुलिया वो सुल्तान जैसे दुनिया जानती थी मोहब्बत में ख्वार हो गया था। कोट को कंधे पर रखे संजीदगी के साथ वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मौसम काफी खराब था। बिजली की गरज चमक की आवाज दिल दहला देने वाली थी। अबर आलूदा आसमान की जानिब सर उठाए सुल्तान मुस्कुराया। उसने सोच लिया वो ज़ुनैशा से दूरी इख्तियार कर लेगा, उसकी खुशी में खुश हो जाएगा। अपने कमरे में जाने से पहले वो खादिमा से पूरे दिन की रवादात सुन चुका था। ज़ुनैशा खाना खा चुकी थी, जबकि सारा दिन कोई हंगामा भी नहीं हुआ था। दरवाजे की नाइब घुमाता वो अंदर दाखिल हुआ। एक नज़र ज़ुनैशा को बेड पर बैठा देखकर कोट सोफे पर फेंकते शावर लेने चला गया। शर्टलेस, गले में तौलिया डाले, माथे पर बाल डाले वो ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा था। शर्ट पहनते मिरर से नजर आते ज़ुनैशा के चेहरे को नजरों के हारस में ही रखा था, जिससे कंफ्यूज होती वो सुर्ख पड़ रही थी। सुल्तान ने रुख मोड़ते उसकी जानिब कदम बढ़ाए, पर ज़ुनैशा ने लब बेचे तकिया मुट्ठियों में पकड़ा। तुम डिस्टर्ब होगी, मुझे कुछ काम है, इसलिए तुम सो जाओ। सुल्तान ने तकिए के पास से अपनी फाइल पकड़ते टेबल पर चीजें उठाई। सुने, सुल्तान जो लैपटॉप पकड़े बाहर जाने लग को था, ज़ुनैशा की धीमी सी आवाज पर रुका। बोलो। अपनी फाइल्स भी बेड से उठाते उसने संजीदगी से उसे देखते ही पूछा। वो जो लब काटते उंगलियां चटका रही थी। वो आप इधर ही काम कर ले, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। आप बेड पर बैठ जाए, मैं सोफे पर लेट जाती हूँ। जल्दी में बोलती वो बगैर सुल्तान को बोलने का मौका दिए तेजी से रूम का दरवाजा लॉक करते बेड से अपना तकिया उठाती सोफे पर रख गई। जरे लब मुस्कुराते उसने सर झटका। पर मैं यहाँ क्यों बैठकर काम करूँ? वो और वैसे भी तुम मेरे होते हुए अच्छा फील नहीं करती। निचला लब दबाए उसने बहतूर ज़ुनैशा के तासरात जांचे। जो स्पीड चेहरे के साथ खिड़कियों के पट बंद देखती, फिर बाहर तूफानी हवाओं के दोष में आती आवाज़ों से हलक तर करती बामुश्किल मुस्कुराई। ऐसा नहीं है, अच्छा फील करती हूँ। वो हकलाती से यहाँ रोकने तक दो में थी। अगर वो यहाँ अकेली सोती तो यकीनन खौफ से ही मर जाती। बचपन से ही उसे तूफानी बदमाशों से खौफ आता था। सुल्तान ने सर हिलाते अपना लैपटॉप दोबारा बेड पर रखा। फाइल साथ रखते उसने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए। ज़ुनैशा उसके रुकने पर दिल ही दिल में शुक्र अदा करती, उस पर उसको अपनी तरफ आता देख सांस रोक गई। सुल्तान उसके करीब आता बाजू से उसकी कमर के गिर्द हायल करते अपने करीब खींचा। ज़ुनैशा ने उसके बदलते तेवर देख दिल मजबूत करते उसे देखा। जो चेहरा जरा टेढ़ा किए उसको नजरों से ही खाने का इरादा रखता था। ये आप पीछे हो, कुछ समझ में नहीं आया तो मजाहमत करती उसे पीछे धकेलना चाहा, पर उसका चट्टानी वजूद वैसे ही खड़ा रहा। मुझे ऐसे क्यों लगा जैसे तुम मुझे अपने बेहद पास रखना चाहती हो। यूं रोक कर मुझे अपने पास रहने का बोलना तुम्हारे इरादे नेक नहीं लग रहे बेगम। कितने दिनों बाद आज सुल्तान की आंखों में शरारत नाच रही थी। इरादे नेक नहीं है, उसकी बात पर वो बुखलाई। उसकी उंगलियों के खुदरे लम्स को कमर पर रेंगता महसूस करारी वो बुखलाई थी। सुल्तान उसके हलकनाने फिर गलत जुमला बोलने पर अपने कहके को दबाता उसकी स्पीड रंगत देखी। ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। बुखलाहट में बोली बात पर शर्मिंदा होती कसमसाते उसके हारस से निकलना चाहा। ज़ुनैशा बहरोज सुल्तान, सॉरी, पर इस वक्त मेरे इरादे नेक नहीं है। मेरी खेत मुस्कुराहट के साथ उसे
समझने का मौका दिए बगैर झुकते उसके नाजुक वजूद को अपनी बाहों में उठाया। वहशत से चीखती उसने सुल्तान के सीने पर मुक्कों की बरसात की। सुल्तान! बेड से उठती वो कुछ कहने को थी, पर उसके होंठों पर सुल्तान कलफ लगाते उंगलियों से अपनी उंगलियां उलझाते उसे पीछे दोबारा लिटाया। शर्म से सुर्ख होती सख्ती से अपनी आंखें मींची, अपने नाखून सख्ती से सुल्तान के हाथों में गाड़े, पर वो बेखुद होता, अपना वजन उस पर मुंतकिल करता। वो किसी नशे में गुम रहा। उसकी सांसें रुकते देख वो जरा पीछे होते उसका लाल भंवर का चेहरा देखा। सुल्तान ने शरारत से अबरुएं उचकाया, पर ज़ुनिशा गुस्से से सुर्ख होती बगैर सोचे समझे अमल किया। जराटेदार थप्पड़ की गूंज खामोश कमरे में गूंजती बहरोज सुल्तान के बाएं गाल पर निशान छोड़ गई। हैरत व बेयकीनी की कैफियत में उसने अपने गाल को छुआ। ज़ुनिशा चेहरे पर हाथ रखे वो भी अपने अमल पर खौफ व डर से देख रही थी। सुल्तान सुर्ख अंगारा सब्ज आंखों में वहशत लिए पीछे हुआ। बेड पर पड़े लैपटॉप को गुस्से से उठाते दीवार पर मारा, टूटकर लैपटॉप पीछे गिरा, जबकि उसकी कहर बसाती नजरें ज़ुनिशा पर मुस्कुर थी। कोशिश भी मत करना आइंदा मेरे सामने आने की, जलाकर राख कर दूंगा तुम्हें भी और खुद को भी। वहशत भरी सर्द आवाज ज़ुनिशा के हवा झंझोड़ गई। वो बहुत बड़ी गलती कर चुकी थी शायद, अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। सुल्तान उसे वार्न करते बाहर चला गया। दरवाजे के बंद होने की आवाज पर ज़ुनिशा सुल्तान ने गहरी सांस छोड़ी, आंखें मूंदी। क्या दोबारा वो अपनी जिंदगी जी पाएगी जहां बेफिक्री थी? काश वो सुल्तान से मिली ही ना होती तो आज उसकी जिंदगी इतनी बेसुकून ना होती। पलकों पर ठहरे मोती गिरते तकिए को भिगो गया। क्या इस बार वो गलत थी? उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। लब काटती उसने सोने की कोशिश की, जो कि बेकार थी। सिगरेट सुलगाते वो सुर्ख सब्ज आंखों के साथ इस मनाज़र को याद करते गुस्से से आग बगोला हो रहा था। जिंदगी में पहली बार किसी ने सुल्तान बहरोज के चेहरे पर अपनी उंगलियों की छाप छोड़ी थी। मैं उसे छोड़ने वाला हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इसकी नफरत से। पर असल में वो तड़प रहा था कि ज़ुनिशा इतनी ही नफरत करती कि उसके करीब जाने पर ये रद्दअमल दिखाया। अपने बाल मुट्ठियों में जगड़ते वो आज पहली बार बेबस हुआ था। रात के 2 बजे कमरे में दाखिल हुआ। बेड पर पड़ा वजूद जिसमें सुल्तान की जान थी नींद में गुम था। उसके करीब जाते उसने अपना हाथ उसके चेहरे से बाल पीछे किए, पर नून सुर्ख और सफेद चेहरा, मोटे आंसू के निशान, तीखी सुर्ख नाक और गुलाबी होंठ। वो एक देवी थी जिसका जादू सुल्तान के सर चढ़कर बोलता था। ज़ुनिशा सुल्तान, अगर थोड़ी जगह कोई और होता तो तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो उसकी रूह परवाज कर चुकी होती। बहुत गलत किया तुमने, मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया है तुमने। मैंने कितनी मोहब्बत की, अपने माँ बाप के खिलाफ तक गया, पर तुमने आज बहुत बुरा किया, बहुत बुरा। धीमी सरगोशियां कमरे में गूंज रही थी। आज सुबह से ही तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। आज मुझे मालूम पड़ गया कि तुम मेरे साथ अभी भी मजबूरी में रह रही हो। तो फिर तुम पर सुल्तान, तुम पर दुनिया के आखिरी कब्जे में दुनिया तुम्हारे कब्जे में आ सकती है, पर फिक्र तुम्हारी मोहब्बत को तुमसे मोहब्बत नहीं हुई। शायद ये दस्तूर ही ऐसा ही है, जिसे हम चाह लें वो हमें नहीं चाहता। मुझे लगता है मुझे ये मोहब्बत नहीं होगी, पर ये साली मोहब्बत तो चिमट ही गई है मुझसे कि अब ना जान छोड़ रही है और ना जान ले रही है। सुनो आंखों से तस्वर में उसे दूर जाता देख वो वहीं सा टपकाता बेड के पास बैठ गया। वो संभल जाएगा, सुबह तक किसी पर खुद के बिखरेगा, राज बयान नहीं करेगा। खटपट की आवाज़ों से उसके माथे पर शिकन उभरी, पर मुसलसल आती आवाज़ों से तंग आकर उसने अपनी आंखें खोली। सुल्तान बहरोज हमेशा की तरह बेनियाजी के साथ ब्लैक फोर पीस पहने खुद पर परफ्यूम स्प्रे कर रहा था। वो शख्स मुकाबले को पल में ज़ेर कर देने की साहलियत रखता था। चंद लम्हों के लिए तो ज़ुनिशा भी यकटक उसके वहजिया चेहरे को देखती रही। जल्दी उठो और 5 मिनट में रेडी होकर नीचे आ जाओ।
اس کی گمبھیر سہرانہ آواز پر زونیشا کی پلکیں بھیگی، جبکہ سلطان نے ایک نظر اس پر ڈالتے باہر چلا گیا۔ وہ اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتی تھی، پر سلطان رکے بغیر چلا گیا۔ ان دونوں کا رشتہ ایک سوالیہ نشان تھا۔ ہر روز ایک دراڑ آ رہی تھی۔ وہ پریشان تھی کہ اب سلطان کیا کرے گا۔ سادہ سا سوٹ پہنتی، بلیک چادر اوڑھے وہ باہر نکلی۔ بات سنو لڑکی، مبین بیگم کی کڑکڑاتی آواز پر اس نے حلق تر کیے۔ اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتی وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی، جو انگلیاں چٹکاتی ڈری سہمی کھڑی تھی۔ تم جانتی ہو کہ سلطان ہمارے خاندان کا اکلوتا وارث ہے۔ وہ جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس کے منہ سے نکلنے والی کوئی بھی بات پوری ضرور ہوتی ہے۔ تم بھی اس کی ضد ہو۔ وہ تمہیں چاہتا ہے یا دل لگی ہے میں نہیں جانتی، پر میرا بیٹا ان دنوں بہت بکھرا سا گیا ہے۔ مجھے میرے سلطان سے بڑھ کر کچھ عزیز نہیں ہے۔ اس کی درگو حالت میں نہیں دیکھ سکتی، اس لیے لڑکی ہم تمہیں اپنی بہو بنانے کو راضی ہیں۔ چہرہ موڑے وہ خود سرد لہجے میں بولی، جبکہ سر جھکائے کھڑی زونیشا ان کے آخری لفظوں پر حیرت سے سر اٹھایا۔ کیا اسے خوش ہونا چاہیے؟ وہ ساکسی ہی کھڑی تھی۔ پر ایک بات یاد رکھنا، میرے بیٹے پر قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم صرف میرے بیٹی کی پسند ہو، میری نہیں۔ اپنے لفظوں کا زہر پھینکتی وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ زونیشا دھیمے قدموں سے باہر آئی۔ سلطان گاڑی سے ٹیک لگائے، سینے پر ہاتھ باندھے، ماتھے پر تیوریاں چڑھائے، سرخ سبز نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زونیشا چال تیز کرتی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ سلطان نے نارمل سپیڈ سے گاڑی چلاتے وقفہ بے وقفہ اس پر نظر ڈالے رکھی۔ اپنی چادر کو انگلیوں پر لپیٹتی وہ بار بار چور نظر اس پر ڈال لیتی۔ سلطان نے نوٹ کیا وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ سوری سلطان، میں وہ سب۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ سلطان نے گاڑی کو بریک لگاتے اس کی طرف جھکتے سختی سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ سرخ گہری سبز آنکھیں اس کی غزالی بھوری آنکھوں کے بے حد قریب تھیں۔ جو تم نے کرنا تھا کر لیا، اب اس بات کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ مجھے تمہاری خوشی دیکھنی ہے۔ جہاں تم خوش وہاں سلطان خوش۔ ماتھے کی پھولی رگیں اور برف لہجہ زونیشا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ بڑی بڑی آنکھیں ہر درجہ پھیلی تھیں، اپنے اتنے پاس سے آتی اس کے پرفیوم کی خوشبو حواسوں پر چھا رہی تھی۔ سلطان ایک نظر اس کی بے یقین آنکھوں میں دیکھتے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی، پر اب کی بار اس کی سپیڈ ہر درجہ تیز تھی۔ گاڑی کو رکتے اس نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ زونیشا اپنے گھر کے سامنے گاڑی رکتے دیکھ حیرانگی سے سلطان کو دیکھا۔ سلطان نے دوسری طرف سے دروازہ کھولتے سائیڈ پر ہوا۔ زونیشا لب کاٹتی باہر نکلی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کی آزاد سوالیہ نشان بن گئی۔ پر سلطان بے نیازی سے کھڑا تھا، جسے پرواہ ہی نہ ہو کون کیا سوچتا ہے۔ زونیشا نے جیسی قدم اندر بڑھایا، بنو دوڑتی اس سے لپٹی۔ آپی، آپ کو بہت مس کیا میں نے۔ خوشی سے نیم آنکھیں لیے وہ چہکتی بولی، جس پر وہ اس کا ماتھا چومتی سلطان کے سخت ترین تاثر کو الجھن نہ سمجھی سے جانتی اندر گئی، جبکہ سلطان وہیں کھڑا تھا اکیلا۔ وہ اپنی خوشیاں رکھنے آیا تھا اس چوکھٹ پر۔ وہ لڑکی اس کی سانس میں گھل چکی تھی، اس سے دور رہنا سوزانے روح تھا۔ پر اس کا ایک تھپڑ سلطان کے وحشی پن کو جگا گیا۔ وہ اب زونیشا کو چھوڑ رہا تھا۔ سینے میں مچلتے تڑپتے دل کی فریاد سنے بغیر وہ اپنے قدم پیچھے لیتا باہر نکلتا چلا گیا۔ اس بار بھی اس نے اپنی مرضی کی تھی۔ رشتے نبھانے اور توڑنے میں بہروز سلطان ذرا جلد باز تھا۔ گاڑی گاؤں کی کچی سڑک سے نکلتی بہت دور نکل گئی۔ 4 ماہ 15 دن 10 گھنٹے 45 منٹ 16 سیکنڈ کافی وقت ہو گیا ہے تم سے ملے مسز سلطان، پر تمہیں ترس نہیں آتا؟ آخر ہو تو بہروز سلطان کی بیوی نا۔ اندھیرے کمرے میں صبح کی ہلکی ہلکی سورج کی کرنیں کھڑکی سے آتی ایک خوبصورت تصویر پر پڑ رہی تھی۔ ایک لڑکی جو مسکراتے چہرے کے ساتھ چمکتی نگاہوں میں خوشیوں کی جگنو لیے مسکرا رہی تھی، جبکہ چھٹلے صوفے پر بیٹھا سلطان کی نظر یکٹک اس کے چہرے کو نہا رہی تھی۔ یہ تصویر اس نے بہت پہلے لی تھی، پر اب روز اس سے باتیں کرنا، شکوے کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ بن چکا تھا۔ ان 4 ماہ کے دوران بہت کچھ بدل چکا تھا۔ مبین بیگم سلطان کی حالت دیکھتی روتی تھی۔ اس کا بس چلتا تو آج ہی
ज़ुनिशा से माफ़ी मांगकर अपने बेटी की खुशियां ले आती। इनकी जिगर का टुकड़ा आज बेहिस बना एक इंसान तो रहा ही नहीं था। हिरा को वो खुद दुबई भेज चुकी थी, वापस उसके माँ बाप के पास। वो मजीद सुल्तान को तकलीफ नहीं देना चाहती थी। एक माँ अपने बेटे की मोहब्बत में हार गई। एक ऐसा खौल था जिसमें सुल्तान बहरोज कैद हो चुका था। रात गए घर आता तो कमरे में बंद रहता, सुबह जल्दी उठते गायब हो जाता। माँ की ममता तड़पती तो सुल्तान से माफ़ी मांगी, पर सुल्तान ने नरमी से इन्हें समझाते उस कुछ भी करने से बाज रखा। अब की बार वो नहीं चाहता था कि ज़ुनिशा सुल्तान को इसकी वजह से कोई तकलीफ पहुंचे। अपनी शर्ट पहनते वो आज रेसलिंग में जा रहा था। बहरोज बेटा, उससे लॉन्च से अनजान बनना गुजरते देख मुबीन बेगम ने आवाज़ दी। बढ़ते कदम रुके तो अपनी गहरी सब्ज़ वहशत भरी आंखें घुमाते सुल्तान ने आबरू उचकाया। बेटा, मैं बहू को घर ले आती हूँ, मुझसे बर्दाश्त। अभी वो कुछ और कहती, सुल्तान ने हाथ से मजीद बोलने से मना किया। माथे पर पड़े बल और रफ्सा हुलिया वो बहरोज सुल्तान तो ना था जो नेक्सिक सा तैयार रहता। मॉम, जस्ट काम डाउन, अभी आपका सुल्तान मरा नहीं है जो बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक हूँ मैं, जी रहा हूँ मैम, सब ठीक है, आप टेंशन ना लें। अफरोज साहब के साथ तासर सिरे से नज़रअंदाज कड़े लहजे में बोलता बगैर मुबीन बेगम की अगली बात सुने बाहर चला गया। सुल्तान पसीने से नीम चेहरा लिए वो जल्दी से उठी, जग से पानी गिलास में डालती वो मुंह को लगाया। दुपट्टे से चेहरा साफ करती अपने दिल की धड़कनों को मामूल पर ला रही थी। नहीं ज़ुनिशा, ये मुझसे ख्वाब है और कुछ नहीं। कुछ पानी के छींटे मुंह पर मारती वो बाहर आई। आज उसे क्लिनिक जाना था चेकअप के लिए, जिसके लिए तैयार होती अपना पर्स पकड़ती, बड़ी सी चादर से खुद को छुपाए वो तंग गलियों से गुजरती, रिक्शे पर बैठती, किसी क्लिनिक के पास रुकी। आंखें अब पीली पड़ चुकी थी, उनकी चमक मांद हो गई थी। धीमे कदम उठाती वो अंदर बढ़ी, चंद लम्हों बाद वैसी सर झुकाए बाहर आई। पर हुआ क्या, एक झोंका आया और चेहरे से जरा पल्लू सिरका। जद चेहरा थकन से चूर, आंखें ऊपर उठी तो गहरी सब्ज आंखों से टकराई। इनका तजादम इतना ज़बरदस्त था कि दोनों के दिल धड़क उठे। फिजा खामोश हो गई। ये टकराव कुदरती था। हर तरफ सन्नाटा छा गया। सुनाई दे रही थी तो सिर्फ ज़ुनिशा की चलती तेज सांसों की आवाज़। ज़ुनी। सुल्तान ने आंखें मूंदे उसका नाम जिस मोहब्बत से पुकारा था, ज़ुनिशा का रूम कांप गया। 4.5 माह बाद वो उसका चेहरा देख रही थी, बिल्कुल पहले की जैसा खूबरू, पर उसकी आंखें, सब्ज आंखें जिनसे अब वहशत टपक रही थी। वाइट शर्ट, ब्लू कोट और ब्लू जीन्स में मुबलिस सुल्तान बहरोज ज़ुनिशा सुल्तान को दर्द भरे माजी में खींच कर ले गया था। सुल्तान ने अपनी आंखों के पास बुझाते दीवानावार उसके चेहरे को देखा। नजरें उसके पहले से ज़्यादा कमज़ोर वजूद पर थीं। तुम अपना ख्याल नहीं रखती क्या ज़ुनिशा? देखो कितनी कमज़ोर हो, बीमार लग रही हो, सुल्तान ने धीमे से कहा। ज़ुनिशा को लगा इर्द गिर्द का माहौल अचानक बदल गया। सुल्तान, सन्नाटा ख़त्म हो गया। हर कोई अपने अपने कामों को रवां था। आपको मेरी सेहत के बारे में सोचने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है बहरोज। सुल्तान स्पार्ट चेहरे के साथ बोलती वो अपने कदम दूसरी तरफ बढ़ाती जाने लगी, लेकिन सुल्तान ने उसकी कलाई पकड़े रोका। आज दोबारा सुल्तान बेख्तियार हुआ था। जो इतने महीनों से दिल को थपक कर सुला रहा था, आज उसे सामने देख दोबारा धड़क उठा। उसकी जुर्रत पर जहाँ ज़ुनिशा का दिल धड़का, वहीं हाथ में पकड़ी फाइल नीचे गिरती सुल्तान बहरोज के कदमों के पास गिरी। तुम ठीक नहीं लग रही मुझे, सुल्तान ने बेचैनी से पूछा। पीछे मुड़ते ज़ुनिशा ने अपनी बुरी आंखें उसकी आंखों में गाड़ी। ये ख्याल इन 4 माह के दौरान क्यों नहीं आया मिस्टर बहरोज? अब आपको मेरी ज़ात से हमदर्दी करने की ज़रूरत नहीं, तलखी से बोलती अपनी कलाई एक झटके से छुड़वाई। पल पल तुम्हारा ही तो ख्याल था मुझे, एक तुम्हारी याद ही थी जिससे मैं गाफिल नहीं होता था। एक ज़ुनिशा सुल्तान ही तो थी जो सुल्तान के दिल और दिमाग पर इस तरह हावी हुई कि उसके सोचने समझने की सहालियत मफलूज की गई। उसने दुनिया पर हुक्मरानी करने वाली बहरोज पर हुक्मरानी कर ली। क्या तुम्हें मुझ पर रहम नहीं आता ज़ुनिशा?
क्या तुम वापस? सुल्तान फिरोज के लहजे के बिखरेपन और आंखों के वलवलाना इजहार पर जुनिशा और तंजिया मुस्कुराई। क्या आपने मुझसे मेरी मर्जी पूछी? क्या मुझे छोड़ने से पहले मेरी रजामंदी जानी? ये आपका ही फैसला है। अब आप मुझसे शिकवा क्यों कर रहे हैं? फैसला आप करते हैं, लेकिन इन फैसलों से नुकसान लोगों का होता है। जुनिशा ने बेदर्दी से उसे वो दिन याद दिलाया जब वो खुद उसे छोड़कर आया था। नहीं जुनिशा, सुल्तान तुम अब की बार गलत हो। इस बार सुल्तान ने नुकसान अपना किया है, पर तुम्हारी खुशी की खातिर। उसका हाथ पकड़ते वो बेचैनी से गोया हुआ। जुनिशा ने मुजाहमत करते अपने हाथ को उस पर उस तपिश गिरफ्त से निजात किया। गहरी सांस भरती वो बौखला गई। आपने अगर मुझे छोड़ना ही था मेरी खुशी की खातिर, तो अपने नाम की बेड़ियां क्यों मेरे पाँव में डाली हैं अभी तक? जुनिशा के सवाल पर जहाँ सुल्तान खामोश हुआ, वहीं जुनिशा ने नफरत से मुंह फेरा। यूँ कहो ना, आज भी तुम वो ही खुद गर्ज बहरोज सुल्तान हो जो सिर्फ अपनी करता है, बगैर दूसरों की मर्जी जाने। जुनिशा ने तलखी से कहते उसके सर पड़ते तासर बातूर देखे। मुझसे अलग होना तुम्हारी खुशी थी, मेरी मर्जी नहीं। जुनिशा बहरोज सुल्तान, मगर मैं खुद गर्ज होता और अपनी मर्जी करता तो तुम इस वक्त मेरे पास होती, मेरे करीब तर। लफ्जों को चबा चबा कर कहते सुल्तान ने अपनी काई जमी आंखें उसके वजूद पर गाड़ी। फाइल अभी भी जमीन पर पड़ी थी, जबकि वो दोनों अपनी बहस में उसे यकसन नजरअंदाज कर गए। अस्तरिया मुस्कुराते जुनिशा एक कदम आगे बढ़ी। फाइल से लगता उसका पाँव उसके चेहरे की रंगत फक कर गया। अगर ये रिपोर्ट सुल्तान ने देख ली तो ये सोच उसके हवास झंझोड़ गई। जबकि सुल्तान ने अपनी तरफ बढ़ते उसके कदम के रुक जाने पर उसकी स्पीड बढ़ती रंगत देखते नजरें आस्था से नीचे करते इसके पाँव के पास पड़ी फाइल को देखा। उसने उससे पहले कि जुनिशा कोई फिरती दिखाती, सुल्तान ने फौरन झुकते फाइल को पकड़ा। ये फाइल मुझे दो। हिलकाते उसने फाइल झपटनी चाही, पर सुल्तान ने उसकी पहुंचने से दूर करते फाइल को तजस्सुस देखते खोला। पर जैसे जैसे वो अंदर मौजूद रिपोर्ट पढ़ता गया, उसकी आंखें बेयकीनी से जुनिशा की तरफ उठी, जो हलक तर करती उंगलियां चटका रही थी। सुल्तान ने कहर आलूदा नजर उसके कांपते वजूद पर गाड़ी और एक ही जुस्त में उसका हाथ पकड़ते उसे अपने साथ खींचता चला गया। गाड़ी में बैठा वो एक गलत निगाह उस पर डाले बगैर गाड़ी दौड़ाई। चंद ही मिनट में सुल्तान उसे दोबारा अपने साथ घसीटते खींचते अपने फार्म हाउस लाया और झटके से बेड पर धकेला। एक सिसकी जुनिशा के लबों से निकली, पर सुल्तान के अंदर के वहशी दरिंदे को कोई असर ना हुआ। कमरे में चक्कर काटते हुए खुद को कंपोज कर रहा था। यकीनन अपने गुस्से से आज कोई शदीद नुकसान कर सकता था। अपने बाल माथे से पीछे करते कदम कदम चलता जुनिशा के करीब आया। बेड पर जरा पीछे खिसकती जुनिशा को आज ये सुल्तान खौफ में मुतलबा कर रहा था। ये वही सुल्तान का रूप था जो अगवा करने के बाद था। बहुत गलत किया जुनिशा, सुल्तान बहुत गलत। मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि मैं बाप बनने वाला हूँ? ये बात जानने का हक सबसे पहले मेरा था, सिर्फ मेरा, और तुमने मुझसे ही छुपाया ये। सुल्तान ने उसे अपने मुकाबले खड़ा किया और गुस्से से गड़गड़ाया। अपने बाजू पर उसकी वहशत गिरफ्त महसूस करते उसकी आंखें भीगी, अजाली आंखें घनी मुड़ी, भीगी पलकें खोले उसने सुल्तान की गहरी सब्ज आंखों में देखा। कुछ था इनकी उसकी आंखों में कि एक अजियत रकम थी इन खूबसूरत दिलकश आंखों में कि सुल्तान ने बेसाख गिरफ्त झलकी करते उससे भीगे नयन कटोरों से गिरता आंसू नरमी से चुन लिया। ये अमल इसने बेख्तियार किया था। जबकि जुनिशा आंखें बंद की उसके लम्स से कांप गई। जुनी, क्या तुमने अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया? तमाम गुस्सा झाग की तरह बैठा। उसकी गाल नरमी से हाथ की पुष्टि चलाते वो बोझल आवाज़ में बोला। उसके पल पल बदलते रंग पर हैरत से उसका रवैया देखा, जो अब मोहब्बत से उसके बाल संवार रहा था। बड़ी सी चादर उतारते उसने बेड पर रखी। उसकी गज़ल आंखों पर अपना तपिश जद लम्स छोड़ते उसके माथे पर होंठ अटका गया। आज उसकी तड़पते दिल पर शबनम की फुहार हुई थी। बेचैन दिल को सुकून मिला था। मन जानम तुम्हारे सामने बहुत बेबस हो जाता हूँ। अब तुम्हें कोई सज़ा भी देना चाहूँ तो दिल इस ख्याल से बंद होने लगता है कि इसकी जूनी को तकलीफ़ पहुँचेगी। पर मैं खुश हूँ आज बहुत ज़्यादा। शुक्रिया जाने सुल्तान, मुझे ये खूबसूरत तोहफ़ा देने के लिए। उसे अपने हारस में लेते वो सरगोशी में बोल रहा था, जबकि जुनिशा आज महीनों बाद उसके करीब इतनी
قریب تھی، اس کی خوشبو سانسوں میں گھل کر اسے نئی زندگی کی نوید لگ رہی تھی۔ کتنا مس کیا تھا اس نے یہ محبت بھرا حارث، اس کا نرم رویہ، اس کا حارث وہ بے اختیار اس کے گرد اپنا حارث قائم کرتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ سلطان نے اس کی کمر سہلاتے اس کے رد عمل پر حیران ہوتے ہولے ہولے لہستے وجود کو محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ میں تب جانا نہیں چاہتی تھی، پر اب آپ مجھے چھوڑ آئے۔ میں بابا بنوں سے مل کر بہت خوش تھی، میں شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی آپ کا۔ میں باہر آئی آپ کو ڈھونڈنے، آپ ادھر نہیں تھے، گلی میں آپ کی گاڑی بھی نہیں تھی۔ اس پل مجھے شدت سے رونا آیا کہ آپ مجھے چھوڑ چکے ہیں۔ بابا نے خاموشی سے مجھے بتا دیا کہ آپ مجھے یہاں چھوڑ کر گئے ہیں۔ مجھے لگا آپ سزا دے رہے ہیں، آپ کو تھپڑ مارا تھا، اس کی وجہ سے یہ سزا جلد ختم ہوگی، پر ایسا نہیں ہوا۔ چند دن انتظار میں تھے، مجھے امید تھی آپ آئیں گے ضرور، پر میرا وہم تھا، پر یہ آپ آئے ہی نہیں۔ آپ نے تو پلٹ کر دیکھا تک نہیں۔ آپ کی محبت کے دعوے مجھے جھوٹے لگنے لگے۔ محبوب سے دوری تو جان کا عذاب ہوتی ہے بہروز سلطان، پھر آپ کیسے مجھے بھول گئے؟ آپ کہتے تھے کہ آپ عشق کرتے ہیں مجھ سے، تو یقین کیوں میری حالت سے بے خبر رہے؟ میں رات کو سسکتی تڑپتی کہ مجھے سکون آئے۔ آپ کی محبت نے مجھے بہت روگ لگا دیا، مجھے بھی محبت ہو گئی ایک بے رحم دل کے مالک سے۔ کتنی عجیب بات ہے نا، جسے شخص نے ظلم کیا میں اس کی دیوانی ہو گئی۔ زنیشہ کو سلطان سے محبت ہو گئی۔ میری حالت بہت خراب تھی، ڈاکٹر نے کہا اسٹریس نہ لیں، پر میں اذیت سے گزرتی اپنی آنکھیں کو بلا وجہ کے انتظار میں ڈال دیتی تھی۔ میری نظریں دروازے پر اٹکی رہتی کہ کبھی تو میں بے مہر کو رحم آئے گا اور وہ مجھے لے جائے گا، پر میں غلط ثابت ہوئی، میری خوش فہمی دور ہو گئی اور آپ نہیں آئے۔ اس کے سینے پر جذب ہوتے اس کے آنسو اور ہچکولے کھاتا وجود، اس کا اظہار، اس کی تکلیف۔ سلطان نے اس کے بالوں میں لب رکھتے سرخ نگاہوں سے اس کا چہرہ سامنے کیا، آنسو سے تر اس کا چہرہ اسے دہاڑی اذیت دے گیا۔ سوری فار ایوری تھنگ، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا تھا، مجھے لگا تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو، میں نے تمہاری خوشی کو ترجیح دی۔ اس کے چہرہ ہاتھوں میں بھرے کہا۔ زنیشہ نے شکوہ کی آنکھوں سے اسے دیکھا اور اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹاتے اپنے آنسو صاف کیے۔ تو ٹھیک ہے سلطان، میری خوشی اب یہی ہے، میں نہیں ہوں گی آپ کے ساتھ۔ بے حسی سے کہتے اس نے اپنی چادر دوبارہ اٹھائی اوڑھی۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہیں جانے دوں گا؟ آبروئیں اچکاتے اسے پوچھا۔ یعنی آپ اب بھی اپنی ہی مرضی کریں گے؟ زنیشہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ بس عادت ہو گئی، اب کیا کر سکتے ہیں، میں عادت سے مجبور ہوں۔ لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ کچھ دیر پہلے زنیشہ کے اظہار نے اس کو جتنا سکون دیا تھا، سلطان تمام چیزیں بھولتا سکون سے کھڑا تھا۔ چلو آج تم دوبارہ اپنے اصل گھر جاؤ گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کا بازو پکڑے اپنے قریب کرتے اس پر جھکتے کان کے قریب سرگوشی کی۔ زنیشہ نے بے اختیار اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جگڑا کہ زنیشہ نے آنکھیں کھولے اس سے پوچھا، جس پر وہ دلکشی سے مسکراتا اسے دیکھنے لگا۔ کتنی خوبصورت مسکراہٹ تھی اس کی۔ زنیشہ نے نظریں چرائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی زنیشہ کو لینے آؤں اس کے گھر سے، تاکہ وہ میرا گھر آباد کر دے۔ میں چاہتا ہوں ایک زنیشہ سلطان کی کلکلاہٹیں میرے گھر کی دیواروں سے ٹکرائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میں اسے لینے جاؤں وہ سرخ لباس میں مبلس میرا انتظار کر رہی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ جب ایک بیسٹ اپنی بیٹی کو لینے آئے تو پوری دنیا اس بات کو جان لے کہ وہ صرف اس کی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کی ماں رخصت ہو کر میرے گھر آ جائے، تاکہ ایک بے چین شخص کو راحت مل سکے، ایک تڑپتی روح کو سکون ملے۔ میرے کمرے کو تمہارا انتظار ہے زونی۔ اس کی گمبھیر سرگوشیاں انجانے میں ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گئی۔ سلطان نے گلاب کی پکھڑیوں کی مسکراہٹ دیکھتے تھما۔ یہ بہروز سلطان اپنے دل کی ملکہ کو دلہن بنا کر لانا چاہتا ہے۔ دھیمی سی سرگوشی کرتے اس نے ہلکے سے اس کے نیم وا لبوں کو چھوا۔ جذبات کے سمندر میں وہ ڈوب جانا چاہتا تھا، پر فی الحال وہ ایسا کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اس کی جان لیوا جسارت پر سرخ ہوتی وہ ذرا پیچھے ہوئی، لیکن سلطان اس آنکھوں سے یہی رکنے کا اشارہ کرتا ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ 2 منٹ بعد مسکراتا باہر آیا۔ اس کے سامنے جھکتے وہ اس کی جانب دیکھا جو اسے اپنے پاس زمین پر جھکتے دیکھ بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے ایک مخمل کی ڈبی کھولتے اس کی جانب کی۔ ول یو میری می مسز بہروز سلطان؟ ایک خوشگوار احساس اس کی رگ و جان میں سراہت کر گیا، یعنی سب ٹھیک ہو چکا ہے۔ زنیشہ نے نیچے بیٹھے سلطان کو دیکھا، پھر اس رنگ کو خوشی سے اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ سوری
सॉरी, पर मैं शादीशुदा हूँ। लम्हों में जुनीशा सुल्तान आंखें घुमाए बोली, जिस पर सुल्तान का सहराना कहका गूंजा। जुनीशा ढंग सी आज इस बदले से सुल्तान को देख रही थी। पर मुझे यही शादीशुदा लड़की चाहिए, अब क्या कर सकते हैं। दिल ही उल्लू का पट्टा जो शादीशुदा लड़की पर आ गया। बेचारगी से कंधे उचकाते सुल्तान ने लब दांतों तले दबाया। सुल्तान उसके कंधे पर मुक्के मारती वो झुझलाई, जबकि सुल्तान हंसते उसे काबू कर गया और उसका हाथ पकड़ते रिंग पहनाई और झुकते किधर से उसके हाथ की पुष्ट पर भूसा दिया। वादा करता हूँ तुम्हारा सुल्तान तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। कमर की गिद्ध बाजू हायल करते अपने करीब किया। अब रोना मत यार, एक तो तुम्हारे आंसू ऊपर ही पड़े होते हैं जो छम छम बरसने लगते हैं। इसकी नीम आंखों पर लब रखते वो शरारत से बोला, सॉरी मैं ही ये बात छुपाई आपसे। उसकी आवाज़ पर सुल्तान ने गहरी सांस भरी। समझ सकता हूँ, पर अब हर लम्हा तुम मेरे साथ होगी हमेशा के लिए। तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। उसके हाथ मजबूती से पकड़े वो बाहर लाया। जुनीशा उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठी सीट की पुष्ट से सर अटका गई। आज उसे कोई परेशानी नहीं थी, हर फिक्र से आज़ाद। उसके लबों पर मुस्कुराहट खेल रही थी, जबकि नज़रें अपने हाथ की अंगूठी पर थीं जिससे इसके लबों पर मुस्कुराहट खेल रही थी, जबकि नजरें अपने हाथ की अंगूठी पर थीं, जैसे जिंदगी ढूंढ रही है। क्या ये वो मकाम मेरा है, यहाँ चैन से बस रुक जाऊं। क्यों दिल ये मुझे कहता है, जज्बात नए से मिले हैं, जाने क्या असर ये हुआ है। एक आस मिली फिर मुझको जो कबूल किसी ने किया है। हाँ, किसी शायर की गज़ल जो दे रूह को सुकून के पल। कोई मुझको यूं ही मिला है जैसे बंजारे को घर, नए मौसम की सहर या सर्द में दोपहर। कोई मुझको यूं ही मिला है जैसे बंजारे को घर। धीमी आवाज में लगा गाना गाड़ी के माहौल को मजीद पुररौनक कर गया। उसे घर के सामने उतारते वो रुका। क्या हुआ? जुनीशा ने बाहर निकलती रुक गई। शराफत के साथ, पहली बार जा रहा हूँ तो अजीब तो लगेगा ही ना। हल्की भूरी दाढ़ी पर अंगूठा फेरते वो जुनीशा को खिलखिलाने पर मजबूर कर गया। जिस चेहरे पर आज जर्दी छाई थी, इसके संग वो बेतहाशा पर सुकून नजर आ रही थी। सुल्तान ने मुस्कुराते जान निसार नजरों से देखा और उसे साथ लिए अंदर बढ़ गया। वैसे जूनी, मैं ससुर साहब से ये कहूँगा कि मुझे मेरे बच्चे की माँ की रुखसती चाहिए। निचला लब दबाए सुल्तान ने हंसी कंट्रोल करते संजीदगी से पूछा। जुनीशा ने आंखें फैलाए उसे देखा और कंधे पर मुक्का मारती सर झुका गई। तब तक बन्नो उसके पास आ चुकी थी और आज पहली बार सुल्तान को इस तरह मुस्कुराता देख रही थी, जिसने आगे बढ़ते उसके सर पर हाथ रखते मजीद हैरत में डाल दिया। उसकी आप ही अपने शौहर के साथ खड़ी थी। इसकी खुशी का अंदाजा उसकी बुरी आंखों की चमक से लगाया जा सकता था। सुल्तान साहब किधर हैं? जरा झिझकते उसने जुनीशा के करीब सरगोशी की। बाबा किधर है बन्नो? जुनीशा सुल्तान को साथ लिए कमरे में आते पूछा। इससे पहले वह कोई जवाब देती असलम दरवाजे से अंदर आता नजर आया। बेरोज सुल्तान कर्फू से सोफे पर टांग चढ़ाए बैठा था, जबकि जुनीशा बन्नो के पास खड़ी थी जो उससे सुल्तान के बारे में सवाल पर सवाल कर रही थी। जिस पर जच आती जुनीशा ने उसे घूरा। असलम साहब ने ताज्जुब से सुल्तान को देखा, जिसने जबकि शान इनकी तरफ देखते सलाम किया, जबकि शान बेनियाजी से वैसे ही बैठा रहा। साहब आप यहाँ खड़िए। सब असलम ने अपनी बेटी को देखे बगैर उससे पूछा, जबकि उसके साहब जी कहने पर सुल्तान ने इन्हें संजीदगी से बैठने का इशारा किया, जिस पर वो सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गए। ससुर साहब, पहली बात आप मुझे साहब मत कहा करें, अब आप हमारी हवेली काम नहीं करते। दूसरी बात, मैं दामाद हूँ आपका, इसलिए मुझे मेरे नाम से पुकारे, मुझे अच्छा लगेगा। उसकी ये तब्दीली असलम साहब को परेशान कर रही थी, जो शहजादों जैसी आन बान लिए संजीदगी से कह रहा था। मेरे यहाँ आने का मकसद से यकीनन आप वाकिफ होंगे। मैं अपनी इमारत लेने आया हूँ, अपनी जुनीशा को लेने आया हूँ, पर मैं अब पूरी दुनिया के सामने उसे अपनाना चाहता हूँ। मुझे आपकी इजाज़त चाहिए इसके लिए। जुनीशा सुल्तान अब खड़ी होती है जवाब का मुंतजिर थी। दिल बेचैन था, पर वो अब जुनीशा से मजीद दूर नहीं रह सकता था। अब तो बिल्कुल भी नहीं, जब वो उसकी बच्ची की माँ बनने वाली थी। जी बेटा, जब मर्जी तुम ले जा सकते हो उसे। सुल्तान साहब ने भी उठते खुशी से कहा। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? इसकी बेटी पूरी इज्जत के साथ जाएगी अपने घर। जुनीशा के सर पर प्यार देते वो सुल्तान को बैठने का कह रहे थे, जबकि सुल्तान ने जरा झुकते असलम के सामने
सामने किया। जुनिशा ने बेयकीनी से इसकी हरकत देखी, वो इसकी खातिर कितना बदल चुका था। असलम भी अपनी हैरत पर काबू पाते उसके सर पर हाथ रखा। बहुत जल्द तुम्हें लेने आऊंगा। जुनिशा को नजर भर कर देखते वो चला गया, जबकि जुनिशा आज खुली फिजा में सांस ली थी, पहली बार इतनी खुश थी, इससे मोहब्बत थी इससे, और बहुत जल्द वो उसके पास होगी। हर तरफ गहमा गहमी थी, दुल्हन की तरह सजी इस हवेली में बरसों बाद खुशियां रक्स कर रही थी। पूरी हवेली इस वक्त मेहमानों से भरी पड़ी थी। मुबीन बेगम अपने बेटी की खुशी में खुश इस वक्त सब तैयारियां करवा रही थी। आज बारात थी और सुल्तान बहरोज अपनी सहराना शख्सियत के साथ मुस्कुराते सबसे मिल रहा था। अफराज साहब और मुबीन इकट्ठे खड़े दूर से ही अपने बेटी की नजर उतार रहे थे, जिसके चेहरे पर आज मुस्कुराहट का राज था। हजारों दिल धड़काता वो बेनियाजी से खड़ा था। हर जगह इस बात की खबर नशर हो चुकी थी कि बहरोज सुल्तान शादी कर रहा था। मीडिया में तहलका मच गया था। ब्लू 3 पीस पहने ब्राइडेड खड़ी को कलाई पर सजाए, बालों को जेल से सेट किए वो नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रहा था। उसे शेरवानी पसंद नहीं थी, ना ही किसी ने फोर्स किया पहनने पर। मगरूर नैन नक्श लिए वो अपनी मलका लेने जा रहा था। बारात के पहुंचते ही शोर उठा। अंदर कमरे में बैठी जुनिशा का दिल धक सा रह गया। ब्यूटिशियन ने जिस महारत से तैयार किया था वो खुद दंग रह गई थी। उस शख्स के जज्बे लुटाती आंखें याद करती जर्जरी सी लाई। ब्लड रेड लहंगे में मुबलिस वो नाजुक जान बामुश्किल इतना वजन बर्दाश्त किए हुए थी। भारी दुपट्टा जाने कितनी पिन्स के साथ सेट किया था। बन्नो तैयार होती, अंदर दाखिल होती, बेसाक माशाल्लाह कहे उठी, चले आप ही सब इंतजार कर रहे हैं आपका। जुनिशा ने मुस्कुराते सर हिलाया। मुबीन बेगम अपने बेटे के हुक्म के मुताबिक उसका घूंघट निकालती उसे साथ लिए बाहर आई। हाल में दाखिल होती तमाम स्पॉट लाइन्स का मज़कर जुनिशा सुल्तान थी। हर कोई बेचैन था बहरोज सुल्तान की बीवी देखने के लिए, पर उसके चेहरे पर घूंघट देख मायूस हुए। स्टेज पर बैठा सुल्तान बेसाख्त उठ खड़ा हुआ, सेज कर कदम रखती बामुश्किल ही चल रही थी। सुर्ख सफेद हाथों की मेहंदी देखते उसके चेहरे पर तबस्सुम बिखरा। असलम ने पास आते जुनिशा को साथ लगाते आगे स्टेज के करीब रुकते उसने सुल्तान को देखा, जबकि जुनिशा को घूंघट से कुछ नजर नहीं आ रहा था। सुल्तान ने आगे बढ़ते अपनी चौड़ी हथेली उसके सामने फैलाई। कुछ नजरों में सताइश था तो कुछ नजरें हसरत से देख रही थी। लोग हसरत से सुल्तान को देख रहे थे जो कितने दिलों पर राज करता था। असलम ने जुनिशा का कांपता हाथ थामे सुल्तान की हथेली पर रखा, जिसने मजबूत गिरफ्त में लेते अपने होने का यकीन दिलाया। जुनिशा को साथ लेते उसे बैठाते खुद बैठा। मैं इस वक्त का इंतजार नहीं कर पा रहा जब मैं ये हसीन चेहरा देखूंगा। सुल्तान सामने देखते बगैर उसका हाथ छोड़े बैठा था। इतने लोगों के दरमियान उसने अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की, पर उसकी गिरफ्त मजबूत थी, इसलिए कोशिश तर्क करते वो खामोश रही। उसकी बात पर जुनिशा ने हल्क तर्क किया, यहाँ बैठकर टाइम ही वेस्ट करना है, चलो हम चलते हैं, ये सब आते रहेंगे। मजीद काफी देर बैठते सुल्तान ने गुस्से से कहा और जुनिशा का हाथ पकड़े खड़ा होने लगा। प्लीज सुल्तान बैठ जाएं, ऐसा ना करें, वो रोमांसी होती रो देने को थी। अच्छा, पर 1 घंटे से ज्यादा मैं इधर नहीं बैठने वाला, तुम्हें उठाकर ले जाना है। जितनी संजीदगी से वो कह रहा था जुनिशा घूर कर रह गई। फिर पर घूंघट के बासित फिलहाल वो सुल्तान के तासर नहीं देख पा रही थी। मुबीन बेगम और अफराज सुल्तान के माथे के बल देखते असलम साहब से रुखसती का कहा, जिस पर हामी भरते वो जुनिशा और सुल्तान के पास आए। रुखसती का शोर उठा तो जुनिशा का दिल डूब कर उभरा। इस शख्स की दस्तरस में जाने से वो घबरा रही थी। सबकी दुआओं के साए तले जुनिशा सुल्तान को रुखसत कर दिया गया। पूरी दुनिया के सामने आज सुल्तान अपनी जुनिशा को लेकर जा रहा था। खुद गाड़ी ड्राइव करते, जब जुनिशा को फ्रंट सीट पर बिठाते वो वहां से गायब हुआ, जबकि मुबीन बेगम उसे खुद गाड़ी ड्राइव करके ले जाते। तासुब से सर हिलाकर रह गई, पर आज इनका दिल पुरसुकून था। सुल्तान ने आज उसे जो खबर दी थी उसके बाद तो वो जुनिशा को दिल से तस्लीम कर चुकी थी। वो दादी बनने वाली थी। ये खबर सुनते ही उसने तमाम अपनी गलतियों की माफी मांगी थी। जुनिशा ने फख्र दिल का मुजाहरा करते उन्हें माफ कर चुकी थी।
साहिर जो तमाम चीजें मैनेज कर रहा था, कोने में रखी कुर्सी पर लहजते वजूद को देखते तजस्सुस से उसकी तरफ बढ़ा। उसके करीब जाते उसने हल्की हल्की आवाज में रोती उस लड़की को घूरा, ए लड़की रो क्यों रही? उसके बाकी लफ्ज मुंह में ही रह गए जब उसने सर उठाते अपनी शहद रंग भीगी आंखों से उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। काकी अचानक उसकी जुबान से फिसला, जबकि बनो आंसू साफ करती जाने लगी थी। अपने लिए काकी का लफ्ज सुनती उसकी तरफ मुड़ी। ए अंकल, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, मुंह तोड़ दूंगी। अंगुली उठाते उसने आंखें से घूरते कहा, जबकि उसकी भीगी आंखें गबस ढा रही थी, जब जिसमें मुकाबले को अपना आप डूबता महसूस हुआ। जानबूझकर उसे तंग करने के इरादे से उसने बात को तोड़ दी। चुड़ैल लग रही हो, काजल फैल गया तुम्हारा, इस वक्त किसी बच्चे के सामने मत जाना, बेचारा नाजुक दिल के होते हैं। ब्लैक सूट में जेल से बाल सेट किए वो काफी हैंडसम लग रहा था, पर बन्नों को तो वो सरे से ही नजर नहीं आता था। इससे पहले कि वो चीख कर साहिर को बहरा करती, वो कहका लगाता वहां से चला गया, जबकि बन्नो उसे 2-4 गालियों से नवाजती अपने बाबा के पास चली गई। अच्छी है पर बच्ची है। लब दबाए दूर से इस तीखी मिर्ची को खुद को घूरते देख मुस्कुरा दिया। खैर, मुस्तकबिल में सोचा जा सकता है, 18 की तो होने ही वाली है। बालों में हाथ फेरते सीट की धुन बजाते वो बाहर चला गया। सुल्तान की गाड़ी हवेली दाखिल हुई। वहां मौजूद सब लोग इस्तकबाल के लिए खड़े थे। सुल्तान ने अपनी साइड का दरवाजा खोलते उसकी जानिब बढ़ा, जुनीशा की जानिब बढ़ते उसकी गोद में पड़ा हाथ पकड़ते अख्तियार से उसकी मदद की। भारी लहंगे में उलझते पांव से लखड़ाती उसने उससे पहले ही सुल्तान उसे मजबूत बाजुओं में उठाते अंदर बढ़ गया। उसका ये अंदाज जुनीशा के हाथ की भीजी हथेलियां पसीने से तर हुई। अपने कमरे में उसे ले जाकर तारते उसकी मुट्ठी भी हथेली को पकड़ता नरमी से खोलते अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में उलझाते मोहब्बत पाश नजरों से उसे देखा जो अभी भी घूंघट में उसके सामने थी। सुल्तान ने हाथ बढ़ाते उसका घूंघट उल्टा मुंजदन नजरों के साथ उसके सरापे को देखते वो आज दोबारा इस पर फिदा हुआ था। सुल्तान, वो उसकी पुरतश नजरों से बचती सर झुका गई। सुल्तान की मलका उसके माथे पर लप रखते वो आंखों में चाहत समोए बोला। जुनीशा उसके हारस में खड़ी थी, उसकी आंखों पर अपना लम्स छोड़ते उसकी नाक में पहनी नथ के मोती को गहरी नजरों से देखा जो रेड लिपस्टिक से रंगे होठों से टकरा रहा था। हाथ पड़ते नथ को आजाद किया जो झूलती लटक गई। जुनीशा, सुल्तान, तुम कभी दोबारा मुझे छोड़कर मत जाना। इसके करीब जाते सरगोशी करता वो उसकी सांसों को उलझा गया। यूं ही उसे बाहों में भरते बेड पर लिटाया। चंद लम्हों बाद आजादी देते अब वो उसकी ज्वेलरी उतारते सेट पर रख रहा था। उसके कंधों पर हाथ रखती जुनीशा ने उसकी गहरी सब्ज आंखों में झांका। वो कभी कह नहीं पाई, पर उसे बहरोज सुल्तान की आंखें बेहद पसंद थी, जिनमें उसके लिए मोहब्बत रहती। उसका भारी दुपट्टा दूर करते उस पर झुका। उसकी गर्म सांसें जुनीशा के चेहरे पर पड़ती उसके हवास मुअत्तल कर गई। उसकी जानलेवा खुशबू उसकी जान लेने के दर पर थी। सुल्तान ने उसके करीब झुकते गहरी नजरों से उसको देखते आंखें बंद की। जुनीशा उसकी बंद आंखें देखती झुकती उन पर अपना नरम गरम लम्स छोड़ गई। आज पहली बार जुनीशा ने उसे छुआ था। उसके लम्स से मदहोश होते सुल्तान ने खुमार आलूदा निगाहों से उसको देखा जो अब उसके माथे पर होठ रखती आंखें मूंद गई। इन तमाम चीजों के लिए शर्मिंदा हूँ जिसने तुम्हें अजियत दी, मुझे माफ। सुल्तान के होठों से निकलते लफ्ज बाकी थे जब जुनीशा ने नाजुक हथेली उसके होठों पर रखते मजीद बोलने से रोका। मैं सब भूल चुकी हूँ सुल्तान, तुम्हारी संगत में ये लम्हात हसीन है, सदा तुम्हारी बनकर रहना चाहती हूँ। तुम भी भूल जाओ सब और नई जिंदगी का आगाज करो जहाँ सिर्फ खुशियों का राज हो। नीम आंखें लिए वो मुस्कुराती बोली। उसकी दिलकश मुस्कुराहट देखते उसके लफ्ज सुनते सुल्तान इस मुस्कुराहट को चुनते अपने लम्स से महकाया। उसकी शिद्दतों से घबराती शर्माती जुनीशा सुल्तान के हारस में लहस गई। रफ्ता रफ्ता उस पर अपने नाम की मेहर लगाता उसे नाजुक मोम वजूद को अपनी आगोश में लेता पुरसुकून नींद सो गया। जबकि जुनीशा अपनी किस्मत पर नाज़ा थी। आज कल जो शख्स उसे वक्त गुजारी का सामान समझता था, आज वो उसके लिए कितनी अजीज थी। बेख्तियार उस पर प्यार आया जो सोया हुआ था। उसकी हल्की भूरी दाढ़ी पर लब रखती वो आंखें मूंद गई। एक नई सुबह उसका इंतजार
ان کا انتظار کر رہی تھی خوشیوں سے بھری صبح۔ سلطان بہروز کو آخرکار اس کا عشق مل ہی گیا۔ کہانی ختم ہو چکی تھی پر اس بار اختتام خوبصورت تھا۔ ختم شدہ